Good evening. You're watching India Upfront. I'm Padmaja Joshi, and a priest appointed by the Kashi Vishwanath Tirth Kshetra read Vedic chants, rang temple bells, and offered prayers to Hindu deities. For devotees, it was a momentous day, one that marks the end of a 3-decade-long wait after a tiring legal battle. Yesterday, after the Varanasi court allowed the resumption of prayers inside the Vyasji Ka Tehkhana, after getting a copy of the order, the administration moved swiftly. And within 8 hours, the metal grill had been removed and prayers inside the premises of the Gyanvapi had started. For people in Varanasi and across the country, they simply couldn't believe their eyes. It's almost as if some people had given up on ever seeing that image again. But now that it's a reality, devotees throng Gyanvapi for darshan, where Aarti will now take place 5 times daily. There's a sense of jubilation, but there are also questions being asked. Why? Why did it take so long? Why was this right denied to devotees to begin with? And at the receiving end of all of these questions was the Samajwadi Party. BJP leaders also gunned for the Mulayam government of 1993, saying that the decision to stop puja in the Tehkhana was taken simply keeping in mind political gains by SP. BJP also alleged that it was as a part of appeasement politics that Mulayam Singh Yadav first opened fire on car sevaks in 1990 and then 3 years later blocked Shiv Bhakts from performing puja in Kashi in the Tehkhana. The Samajwadi Party, on the other hand, now that the court has allowed for the prayers to take place, asked, what's the hurry? Why was puja? Fact said that the court had given a 7-day period, then why was all of this done within a matter of 8 hours? Why were devotees allowed to enter? Was it to prevent the mosque side from seeking any legal recourse, or was it to vitiate the atmosphere, to create a divide, to polarize for political gains? Without any written orders. There is no written order to stop the puja of the Vyas Parivar in that cellar. So without any written orders, Vyas Parivar was thrown out, and these cellars, these barricadings you are seeing around the cellars were installed without any written orders. So all these illegal acts were done by a state government. It was very quick for one state government to stop the puja, and so it is very quick for another state government to comply with the orders of the court. रख करके मुलायम सिंह ने मना किया था। पूजा पद्धति वहाँ वर्षों से चल रही थी और ये माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, क्योंकि वहाँ पूजा हमेशा होती रही है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदू परंपरा में देवी देवता की पूजा बहुत आवश्यक है। मैं इसके लिए स्वागत करती हूँ। तो पहले होती थी पूजा, लेकिन मुलायम सिंह जी ने उसको बंद किया था और वो एक तरह से राजनीतिक एंगल से देख करके बंद किया गया था। देखिए, इस सरकार ने ना तो महंगाई कंट्रोल करी, ना रोज़गार दिया, ना किसानों को खुशहाल करा, ना ही इसने कोई ऐसा काम करा जिससे कि आम जनता खुश हो। आसान सा फार्मूला है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, वोट लेते रहो, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक? ये 3 मस्जिदों के बाद 3000 मस्जिदें और हैं टारगेट पे। 500 साल 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज उसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? So the simple question today is, instead of saying, why has the puja been started so quickly? Is there political polarization? Will the Samajwadi Party instead answer for why this historical wrong was done in Gyanvapi? Why were devotees barred to begin with? Was it because of appeasement politics? It's rich that today they are talking about polarization. Will they answer who was trying to polarize in 1993 when, without so much as an excuse me, an entire community was told, you are going to be denied your rights, not because the court has ordered it, not because there's a law and order situation, but simply because the government says so. Who is going to answer for those 3 decades of denial? Joining us on the debate today, Sohan Lal Arya, petitioner, Vijay Shankar Tiwari, national spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad, Rohit Agarwal, spokesperson of the RLD, an ally of the Samajwadi Party, political analyst Kamruzaman Chaudhary. But my first question is to IP Singh, spokesperson of the Samajwadi Party. आज सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है
है कि 1993 में ये तहखाने में पूजा क्यों बंद की गई थी। आईपी सिंह जी। पद्मजा, मैं ये कहूंगा कि टाइम्स नाउ बड़ा नेटवर्क है और आज का नहीं, दशकों का। 1993 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कानून व्यवस्था की किस तरह की स्थिति थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था, माननीय हाई कोर्ट का क्या रुख था, उसके आधार पर सरकार फैसले लेती है। और कोई भी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या ग्रुप ऑफ कैबिनेट्स हो, ये फैसले जो लेते हैं, इसका एक्सक्यूशन जो है अधिकारियों के हाथ में होता है और अधिकारी उसका एक्सक्यूशन करते हैं। तो आईपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर था जिसने 93 में बोला कि ये तहखाना बंद होना चाहिए? आप दिखा सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऑर्डर पे लिखा था कि तहखाने को बंद किया जाना चाहिए? पद्मजा, काश आप बेरोजगारी पर मुझसे सवाल पूछती, काश महंगाई पर जो पेट्रोल 50 रुपए था वो 100 रुपए हो गया, जो गैस के सिलेंडर 370 सर, तो 1993 में आपको बेरोजगारी और महंगाई और सिलेंडर पे वार करना चाहिए था। आपने तहखाना बंद करके कौन सा सिलेंडर सस्ता कर दिया? कौन से बेरोजगार को रोजगार दे दिया? तहखाना बंद करके आपने 31 साल तक सब कुछ बंद कर दिया, लोगों को दूर कर दिया मंदिर से। आज आपको सिलेंडर याद आ रहा है? 1000 सालों में क्या हुआ? ये तहखाना बंद के कौन सा सिलेंडर सस्ता हुआ, आप बताइए। हम बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, हम महंगाई पर चर्चा नहीं करते। तो आपको बेरोजगारी पे उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था ना। तहखाना क्यों बंद किया आपने? आप ये बताइए ना। सामूहिक विवाह में किसी का मंदिर आप बंद कर दे और अब आप पूछ रहे सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं है? मंदिर क्यों बंद किया, आप ये बताइए ना। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुझाव दीजिए और गृह मंत्री जी को दीजिए कि एक ऐसा कानून बना दें कि देश में जितने विवादित मामले हैं, बार बार लोअर जो निचली अदालतें हैं, फिर ऊपरी अदालतें हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाने से अच्छा कि एक बार जो भी कानून बनाना है संसद में पास कर दें और जितने ताजमहल से लेकर जितने इस तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं सबको डिमोलिश कर दीजिए। आईपी सिंह जी, कमाल की बात है कि आपने बिना कागज के, बिना पत्थर के, बिना ऑर्डर के, बिना कोर्ट के एक आदमी का मंदिर बंद कर दिया, एक समुदाय का मंदिर बंद कर दिया, पूजा बंद कर दी। 30 साल बाद जब वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आते हैं तो आप कहते हैं अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों? मैं तो कह रही हूँ 60 घंटा क्या, मैं कह रही हूँ 31 साल क्यों लग गए? छोटी रही होगी, लेकिन 93 का वाकया मुझे याद है। मैं 29 साल बीजेपी और संघ में रहा हूं। मुझे ये पता है कि बीजेपी कौन सा हथकंडा चुनाव में अपनाती है। सुबह 5 बजे महाराष्ट्र में शपथ हो जाती है। सुबह 5 बजा था, अभी लोग देश सो रहा था। 7-8 बजे सो के उठे, पता लगा महाराष्ट्र में शपथ हो गई, आनंद फानंद में बिहार में शपथ हो गई। लेकिन पद्मजा उस पर बहस नहीं कर रही हैं कि झारखंड में एक आदिवासी, झारखंड में पूरे दिन हम बहस करेंगे, पर कुछ सवालों का जवाब 30 साल देर ही सही, पर कम से कम अब तो देना चाहिए ना। अब तो देना चाहिए ना। चलिए, सोहन लाल आर्या जी, ये बताइए उस वक्त 1993 में क्या स्थितियां रही होंगी? आईपी सिंह जी कह रहे हैं इतनी मुश्किल थी, बंद करना पड़ा मुलायम जी को। सोहन लाल आर्या, इस समय जब व्यास जी के तहखाने पर बात चल रही है, जब माननीय जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश, और आश्चर्य ये है कि माननीय मुलायम सिंह जी 1993 में 1993 में जो व्यास जी को तहखाने को बंद कर दिया गया, अराजी नंबर 9130। ध्यान से सुनिए, यही नहीं, श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन जो हर दिन होता था, 24 घंटे होता था, और आप उसको रोक दिया और कहते एक दिन के लिए कर दिया गया। कितना आप, और जब आपसे प्रश्न किया जा रहा है तो आप बहका रहे हैं, इधर उधर बहका रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर, आप जो प्रश्न आपसे कहा गया उसके बाद व्यास जी के तहखाने के बारे में बात करिए। और आप क्या स्पष्ट नहीं है, 2004 तक ASI का फैसला आया और उसमें यह स्पष्ट, भाई साहब नहीं, आप जो प्रश्न कर रहे थे, जब ASI, आप हमारी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ASI का फैसला आया, उसमें साफ साफ ये कहा गया कि एक भव्य विशाल मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना, और उसी क्या इसे, और हम हर सर्वे में रहे हुए, चाहे वकील कमिश्नर का हो, चाहे भी जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण को, सारी जब विशाल उस मस्जिद में
आप गए नहीं मान्यवर, मैं गया हूं। वह विशाल खंभे जो 3 फीट चौड़ा है और 14 फीट लंबे हैं, चारों कोने पर से घंटिया और जंजीर बनी हुई है। वहां पर ओम चक्र, सुदर्शन चक्र बना हुआ है, यहां से ओम लिखा हुआ है, स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है। इतना ही नहीं, आखिर किस मस्जिद के सामने विशाल नंदी है? कभी आपने देखा है? आज उसके झरझर बहते हुए आंसू को कब महसूस किया है? नहीं महसूस किया आपने जो है। और दूसरी चीज आपको बता दें, आप विषय से भटकना बंद करें। आप जो कहा गया है 2023 जो है 93 में मुलायम सिंह किस आधार पर बिना लिखा पढ़ के वह रोक दिया गया, श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन को रोक दिया गया। इसीलिए काशी की 4 वादी महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक ने दर्शन पूजन के अधिकार के लिए याचिका की है। उसी याचिका के दौरान आगे भी चलता आ रहा है। मान्यवर, आप विषय पर आइए, विषय पे आइए। Rohit Agarwal, come to the point. After 31 years, when finally some accountability is being sought, after a court has struck down what was done by the Mulayam Singh government, now it's very convenient to say, oh, why are you not talking about cylinders? The same question can be asked of Mulayam Singh Yadav. Why was he not talking about cylinders? Why was he focused on a cellar instead of a cylinder in 1993? Should the same question be asked of people when they are saying, oh, you know, we will always consider the Babri Masjid to be Shaheed? Then they should be asked, you also talk about cylinder. Why are you talking about the Babri Masjid? Where is the accountability? Rohit Chaudhary. Rohit Agarwal. Padmaja, first of all, the Chief Minister do not have any say in stopping any worship or starting any worship. The other point is this, Mulayam Singh government has never issued any order to stop the worship. It was the local administration who has taken a call to stop the worship. Seeing the that the atmosphere was vitiated, so we stopped the Hindus from worshipping. Why? What wrong did the people in Varanasi? What had they done? Padmaja, did they riot? Did they threaten violence? Did they say we are going to come out with weapons? Why were they stopped? Achha, then again, okay, fine. Then I want to ask BJP spokesperson that he should explain why they have given Padma Vibhushan to Mulayam Singh, whether they have given for fire on Kar Sevak in Ayodhya, or they have given for stopping the worship in Singar Gauri. Why they have given Padma Bhushan to Mulayam Singh? Okay, that is a very convenient argument. Let me take the more logical argument that you have made and ask Vijay Shankar Tiwari. Vijay Shankar Tiwari, Rohit Agarwal RLD के कहते हैं कि इसमें मुलायम सिंह का कोई हाथ ही नहीं था। वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, देखिए बाबरी मस्जिद के बाद माहौल बिगड़ सकता है तो बंद करा दो। मुलायम जी का कोई हाथ नहीं था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था। देखो पद्मजा, मुलायम सिंह जी का वहां पर हाथ भी था और मुलायम सिंह जी का वहां पैर भी था। 90 में भी उनका हाथ था और पैर था, और 93 में भी उनका हाथ था और पैर था। लेकिन किसकी हिम्मत थी कि वहां पर लाखों भक्त जहां पर दर्शन करने जाते हों, आज भी लाखों भक्त वहां दर्शन करने आते हैं। 1993 में भी लाखों दर्शन करने आते थे। कोई शंका नहीं थी, कोई आशंका नहीं थी। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इसमें बैरिकेड्स लगा दिए गए। यानी 31 वर्ष तक हिंदू समाज जो वहां पर पूजा करता था, अपनी पूजा से वहां पर वंचित रहा। आज कल जब वो निर्णय हुआ कि वहां पर व्यास परिवार वहां पूजा करे, भोग लगाए, और इनको कष्ट हो गया वहां पर अगर पूजा करने जाने लगा। रोहित अग्रवाल, ये कौन सी संस्कृति है? और दूसरी बात पद्मजा, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आपको ध्यान में साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है, अधिकार मांगने के लिए 14 से 15 जिला कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तीनों ने अनुमति दी और तीनों ने कहा कि इसका सर्वे होना चाहिए। ऐसे तो नहीं दे सकते, सर्वे कराइए। सर्वे हुआ, पूरे प्रमाण के साथ हुआ, वीडियो वहां पर बनाए गए, वहां पर रासायनिक जांच हुई, यानी जितने भी तथ्य हो सकते हैं वो सारे तथ्य निकाले गए। रिस्पॉन्ड रोहित अग्रवाल, क्लियर चार्जेस अपीजमेंट। सालों में 15 साल आपकी केंद्र में सरकार रही है, एक अंधे व्यक्ति को भी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। Rohit Agarwal, appeasement. वहां पर To prevent a group of people from peacefully offering prayers, I want to ask you, in 1993, before this entire sealing was done, tell me, were there riots? Was there violence? Was there any untoward incident? Was there any intelligence input? What was the basis?
What was the basis that a group of people who were peacefully minding their business were stopped from offering prayers? Name me one instance that happened. Was there even a skirmish? Why did you stop the prayers? Actually, it is a call by the local administration. See, Padmaja, it was a call from the local administration. Yesterday, some youth have put a sticker on Gyan Vyapi signage. So today, administration is threatening them that they will put them behind the bars. So is it a government order or is it a chief minister order that the local administration is threatening the youth to put them behind the bars for putting a sticker on Gyan Vyapi signage? No, Okay, विजय शंकर तिवारी, it is a call of a local administration. माहौल बिगड़ सकता था, जैसे कि आज ज्ञानवापी खुला है और कुछ लोगों ने वहां एक पोस्टर चिपका दिया। 93 में भी कुछ माहौल खराब होगा। देखो ये सारी बातें पद्मजा कल्पनाएं की नहीं होती है, बिगड़ा तो नहीं ना। मैं कहता हूं ये कल्पना की बात कर सकते हैं क्या? एक निर्णय आया और प्रशासन ने उसको त्वरित उसका उपयोग करके अपने अधिकार का, अपने कार्य क्षमता का उपयोग करके एक कार्यविधि का संचालन करा दिया, तो उनको श्रेय देना चाहिए, इनको प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई कोर्ट का निर्णय आया है और वहां के शासन ने समुचित व्यवस्था करके पूजा पद्धति शुरू करवा दी और कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। अब आप कहते गड़बड़ हो सकती थी, तो आपके गड़बड़ तो यहां बोलने से भी हो सकती है, आपके जो आप बात कर रहे हैं, आपके टीवी बैठकर बात करने से भी गड़बड़ हो सकती है। हो रहा है वहां पे, तो ये ऐसे इस प्रकार से संकल्पनाओं और कल्पनाओं के आधार पर बात नहीं करनी होती है। जो हो गया है, जो प्रत्यक्ष हो गया है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आपकी 15 साल सरकार रही है, आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। कोई अच्छा काम प्रशासन ने किया, उसकी सरकार नहीं प्रशंसा नहीं रही कर सकते। है 31 सालों में। आप जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से कि वहां पे पूजा रिज्यूम नहीं हुई। The worship was not resumed. You are responsible for that because in 1998 आज हो गई, अगर आज हो गई पूजा, आज पूजा अगर प्रारंभ हो गई है तो क्या दिक्कत हो गई? अगर 30 साल 31 साल नहीं कर पाए हैं, कोर्ट ने निर्णय दिया है, आज वहां पूजा हो रही है, तो आपको समस्या क्या है? आप तो सिर्फ क्रेडिट, आप क्यों समस्या पैदा कर रहे हैं? आपको दिक्कत क्या है? अब्दुल्ला दीवाना हो, आपको दिक्कत क्या है? क्रेडिट क्या है? जिला न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वहां पे जिला न्यायालय ने निर्णय दिया है, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, जिला कोर्ट गया और सबने सर्वे कराने के लिए कहा, सर्वे हुआ, वहां मूर्तियां निकली, मस्जिद का कोई अंश नहीं है। Okay, you know, I want to just show our viewers, Kamruzaman Chaudhary, imagine this. You had a Hanuman idol that was found lying in ruins. Now, many people say that time there was a law and order problem. Okay, let's assume for a second that in 1993 by some divine intervention somebody decided कि यहाँ पे riots हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? Nobody knows. Riots हुए नहीं हुए, violence हुआ नहीं हुआ, आपने बंद कर दिया। Then for 31 years nothing was done. It could have been shut for a day, it could have been shut for a week, maybe even a month. But it was allowed to go on, it was just barred. Such was the level of negligence that Hanuman idol, Shiv idol were all found lying in ruins. Today, the aarti that we saw was of all of these deities which were left to languish in a pile of rubbish. And that is the reason I keep asking, who is going to answer for this? This wasn't just about being denied the right of worship. It was also about an insult to the deities that were there in cellar of Gyanvapi. Who will atone and answer for that insult? Kamruzaman Chaudhary. Padmaja, I hope I'm given some uninterrupted time before I complete my submission before you. You know, the entire episode is not about what happened in 1993 or what is happening in 2024. My opinion in this regard is that it's a toolkit case similar to that of the Babri Masjid and the Gyanvapi Masjid case. Both have got very much of similarities. You know, in the Gyanvapi case, the most critical part of this judgment yesterday was that the judge who was delivering the judgment was retiring the next day. When the court was educating on the issue of whether the worship can be allowed, whether the religious character of the masjid or the mandir, what was it? When the court was deciding what was the hurry in preempting that the worship can be started from 7 days from now. Whatever happened today was preempting the court order. नहीं कल होकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उससे पहले आज ही से पूजा स्टार्ट कर दो.
Now, do you want to suggest to me that the Hindu side is making a preemptive move by starting the worship by today and saying that whatever the order may be coming from the courts of the land, we are not going to accept any adverse order in this regard? Are we going to suggest that? How is it a preemptive move? Okay, let's Sohan Lal Arya. अब सवाल ये पूछा जा रहा है, जब कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया था, ऐसी क्या जल्दी थी कि 8 घंटे में ही पूजा शुरू कर दी गई? ये बाबरी टूल किट कह रहे हैं सोहन लाल जी। आप कह रहे जल्दी? अरे भाई 31 साल, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1-2 साल, 31 साल इंतजार किया। और आप वह व्यास जी 500 वर्षों से व्यास जी उस तहखाने के पूजन पाठ कर रहे थे। एक घटना आपको बतला दे, 1936 की फैसला, मुकदमा नंबर 62/1936, दीन मोहम्मद और उनके भाइयों ने फैसला था, कहते थे कि हम संपूर्ण ज्ञानवापी पर जो है नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो फैसला हार गया। उसका फैसले का मुख्य बिंदु यह था कि संपूर्ण जो है बिंदु व्यास जी की संपत्ति है, यानी व्यास जी मतलब संपूर्ण भूतल पर जो है व्यास जी। आज उसी व्यास जी के तहखाने की बात हो रही है। आप हाँ, आज उसी व्यास जी की तरह हो रही है। आप 31 साल इंतजार करने के बाद अब जल्दी की बात कर रहे हैं, और जब बात हो रही है तो बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सारी साक्ष्य जब हम ये सारी साक्ष्य मौजूद है उसी तहखाने में। एक राम का शिलापट्ट है, उसमें हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, नंदी है, और उसमें जो है मगरमच्छ की मूर्तियां हैं, और अखंड जीत जल रहा था। उसके दीवारों पर आप सुनेंगे बात, उसके दीवारों पर छेनी और तोड़, जिससे हमारे देवी देवताओं की जो है मूर्तियों को तोड़ा गया, और मूर्तियों के सारे साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। उन्हीं देवी देवताओं को जो कुछ जो बच्चे, किसी का मुंह सर नहीं है, किसी का पैर है, किसी का हाथ नहीं है, उसी व्यास जी के तहखाने में। क्या इसको ये आपको नहीं मालूम? इन साक्ष्यों, हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद भी अगर हम जो है 31 साल इंतजार किए, तो आप कहते हैं ये Okay, interesting that not only was this shut for 31 years, an effort was made to wipe out the evidence. Kamruzaman Chaudhary. Now, when this gentleman is citing the Deen Mohammed case of 1937, he must be reminded that not everything that comes on the WhatsApp is a fact. You know, you need to study and come to debates. In that case, particularly the civil court has ruled, and I am reading the ruling, that the land on which the Gyanvapi mosque stood and its plinth was Hanafi Muslim Waqf land and belonged to the Muslims. The Hindu side went to the High Court in 1942, wherein their appeal was turned down. Leave aside all those things. In 1947, we all started with a new hope, with a new imagination that अमन चैन से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहेंगे. Whatever happened after this, 1991, the Places of Worship Act, these are all immaterial as of now. Hold on a second. This is not subject one to the Places of Worship Act, because in 1993 prayers were offered by Hindus, and this is a very convenient कि अमन चैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की है. एक आदमी की पूजा रोक दी जाती है और फिर कहा जाता है तुम पूजा मत करो क्योंकि अमन चैन खराब हो जाएगा. अमन चैन की ताली 2 हाथ से बजती है सर. अमन चैन की ताली cannot be one person's responsibility alone. Now let me ask you. No, Padmaja, this is a majoritarian view that you are holding. You tell me one thing. No, this is a fundamental rights view that I am holding. A majority also has the same fundamental rights as the minority. You cannot say, you cannot practice your religion, because I fear that the very practice of your religion is going to vitiate the atmosphere. You don't need to indulge in violence. You don't even need to adopt a threatening posture. Your very existence is a threat. So you cannot pray anymore because your very offering of prayer is going to be perceived as a threat. That, sir, is a very perverted sense of saying what maintaining law and order is. Anyway, Sohan Lal Arya wants to respond. ये कह रहे हैं खास तौर से कि आप 93 का रोक दिया था, क्या यहाँ जो है अवमानना नहीं होती है? आप बार बार ये कह रहे हैं जो है खास तौर से, और 47 नहीं बल्कि 44 था, उसमें जो है उसमें जो मुस्लिम समाज हार गया, 36 में 44 में गया, उसमें फैसले का यह बिंदु था कि मुस्लिम समाज संपूर्ण भूतल पर हिंदू समाज कब्जा है. जब मुस्लिम समाज हिंदू समाज सहमति दे, कहने का तात्पर्य हम कितनी उदारता बरतें. सारी के सारी साक्ष्य जो है संघ चक्र गदा त्रिशूल सारी के साक्ष्य भरे पड़े हैं, और आप अभी ये कहते हैं अरे व्यास जी के तहखाने भी सारे साक्ष्य पड़े हुए हैं.
Okay, अब फिर final ये- word. ये बार- IP Singh, today, do you think that in order for there to be reconciliation, at the very least, there should be an acknowledgement that a wrong was done? It was done for whatever reason, that explanation and accountability needs to be offered. IP Singh. देखिए, चुनाव का वक्त है, इसलिए बार बार श्रद्धेय नेताजी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को और उनके नाम को यहाँ बीजेपी भुनाना चाहती है। अगर नियत साफ थी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश की 6 वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर रहे। मोदी जी 10 वर्ष उनके पूरे हो गए। आखिर चुनाव के वक्त निचली अदालतों के फैसले क्यों याद आए? क्यों नहीं ये फैसले पहले ले लिए गए? क्योंकि तो सिर्फ सवाल ये ये है फैसले कि सरकार ने नहीं लिए, ये फैसले अदालतों ने लिए। फिर अगर सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ जाती या सरकार कोई आदेश करती, फिर आप कहते हैं देखिए ये मेजॉरिटेरियन सरकार है। ये सरकार ने थोड़ी ना अपील की है। कहा कि आप बीजेपी का जो ग्राउंड है, जो आरएसएस इस तरह से आजकल हिंदुओं का ठेकेदार हो गई है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ठेकेदार है, वो ये तय करेगा कि हिंदू कैसे क्या करेगा देश में। क्या 100 साल पहले क्या हिंदुत्व देश में नहीं था? क्या हमारे गांव में 200 वर्ष से पुराना मंदिर है? क्या आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था? क्या वो मंदिर आरएसएस ने बनवाया, विश्व हिंदू परिषद ने बनवाया? तो ये नेतागिरी जिस तरह से आरएसएस कर रहा है, जिस तरह से बीजेपी इसको गुमराह कर रही है, मैं तो यही कहूंगा कि चुनाव का वक्त है, इसलिए हिंदू मुसलमान बीजेपी करना चाहती, इसलिए निचली अदालतों के फैसले, इस तरह के विवादित फैसले आ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि देश में किसी भी तरह का कोई विवाद न उत्पन्न हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चलिए, अब वापस 31 साल बाद कोई पूजा करने जा रहा है तो उसको भी विवादित माना जा रहा है। विजय शंकर तिवारी, चुनाव आ रहे हैं तो मुलायम सिंह जी के नाम को घसीटा जा रहा है। जी पद्मजा, एक बात देखिए कि अभी आईपी सिंह जी कह रहे थे कि वोट की राजनीति व्यक्ति को, समाज, किसी पार्टी को कितना नीचे गिरा सकती है, ये आपने देखा है कि न्यायालय को भी आईपी सिंह जी ने नहीं बख्शा। यानी ये कह रहे हैं कि ये निर्णय अभी क्यों आ रहे हैं, चुनाव के समय कब आ रहे हैं? तो चुनाव तो हर तीसरे चौथे महीने हमारे देश में होते रहते हैं। जब भी कोई निर्णय आएगा तो आप चुनाव का सहारा ले लेंगे। आप सच्चाई को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? अभी एक बात आई कि ये हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात आई, एक साथ रहने की बात आई। तो अगर साथ रह सकते होते तो पाकिस्तान क्यों बनता? और अगर साथ रहने की बात थी तो श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे में ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये राम तो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, उनको दे दीजिए? और ये जो मुकदमा चला है 31 साल, एक हिंदू समाज को अपने वहां पर आस्था के स्थान पर पूजा करने क्यों नहीं दिया गया? तो ये आंखों में पट्टी बांधने की बजाय सत्यता को स्वीकार करना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि जो ये हिंदू आस्था के केंद्र हैं उन पर राजनीति न करे समाजवादी पार्टी। कोई ऐसी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है उसको उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पद्मजा, And you know, this is also perhaps a lesson for all of us for the future as well. Perhaps myopic politics, like trying to shut down one community, trying to take away their right to worship, saying that this is in larger interest, it's an interest of communal harmony without so much as written orders, may give you short-term gains. But in the long term, people are going to see through your actions and their intent. Ultimately, you will be answerable in the court of the people for everything that has been done in the present and in the past. Thanks very much, gentlemen, for joining me.